پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ آمد پر صحافیوں نے وزیر اعظم سے سوال پوچھا کہ بجٹ کیسا ہوگا۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، بجٹ ایسا ہوگا کہ آپ سب لوگ خوش ہو جائیں گے۔ بجٹ ہوگا آج عوام دوست بجٹ ہوگا، سب خوش ہو گیا۔ تھینک یو خان صاحب، کیا عوام دوست بجٹ ہوگا آج؟ عوام دوست بجٹ ہوگا، سب خوش ہو گیا۔ تھینک یو خان صاحب، کیا عوام دوست بجٹ ہوگا آج؟ عوام دوست بجٹ ہوگا، سب خوش ہو گیا۔ تھینک یو خان صاحب، کیا عوام دوست بجٹ ہوگا آج؟ عوام دوست بجٹ ہوگا، سب خوش ہو گیا۔ تھینک یو تو وزیر اعظم نے خوشخبری سنا دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ بجٹ عوام دوست ہوگا۔ وزیر اعظم جب آج پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو یہ گفتگو انہوں نے کی ہے۔ مزید خبریں شامل کرتے ہیں وزیر اعظم کی زیر صدارت بجٹ سے متعلق کابینہ کا خصوصی اجلاس۔ وفاقی کابینہ نے بجٹ 2021-22 کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے فائنانس بل 2021 کی اہم ترامیم کے ساتھ منظوری دی۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ قادر بتائیے۔ دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بجٹ تجاویز کی منظوری کے لیے کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا تھا جو ختم ہو چکا ہے۔ اس اجلاس کے دوران وزیر خزانہ شوکت ترین نے تفصیلی کابینہ اراکین کو بریف کیا، جس کے بعد کچھ صلاح مشورہ ہوا اور حکومتی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ایک ترمیم کے بعد فائنانس بل 2021 کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وفاق کے، ان کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے انٹرنیٹ پر ٹیکس کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ آج انٹرنیٹ کے اوپر کچھ ٹیکسز عائد کرنے کے حوالے سے تجویز دی گئی تھی، جسے وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ انٹرنیٹ اب بنیادی ضرورت ہے، پاکستان اب ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہا ہے، اس لیے موبائل فون پر جو ٹیکسز ہیں ان کو بھی محدود کیا جائے اور انٹرنیٹ پر جو ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے اسے بھی رد کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اسی اجلاس کے دوران جو پارلیمانی رہنما ہیں یا پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کو بجٹ تجاویز کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا اور کچھ دیر بعد پھر قومی اسمبلی کا باضابطہ اجلاس شروع ہوگا تو اس میں کابینہ کے اراکین اور ارکان قومی اسمبلی وزیر اعظم کے ساتھ ہی جائیں گے۔ ٹھیک، قادر ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے کہ وفاقی کابینہ نے فائنانس بل 2021-22 کی اہم ترمیم کے ساتھ منظوری دے دی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی گروتھ 4.8% رکھنے کا فیصلہ۔ بجٹ دستاویز کے مطابق زراعت کے شعبے کی 5% گروتھ کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ فاروق اعجاز سے اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ فاروق، بتائیے گا مزید کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، 2021 اور 22 کے لیے جو جی ڈی پی گروتھ سے حوالے سے جو دستاویزات موصول ہوئی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی گروتھ 4.8% رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو زراعت کے شعبے کی جو گروتھ ہے وہ 5% کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور اہم فصلوں کی پیداوار کے لیے 2.9% گروتھ کا ہدف رکھا گیا ہے۔ کپاس کے لیے پیداواری گروتھ کا ہدف 10% مقرر کیا گیا ہے۔ فشریز اور جنگلات کے لیے 5% گروتھ کا ہدف رکھا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے صنعتوں کی گروتھ کے لیے 6.5%، جبکہ مینوفیکچرنگ کے شعبے کے لیے گروتھ کا ہدف 6.2% مقرر کیا گیا ہے اور آئندہ مالی سال کے لیے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ کا ہدف 6% رکھا گیا ہے۔ تعمیرات کے شعبے کے لیے گروتھ کا ہدف 8.3% مقرر کیا گیا ہے اور خدمات کے شعبے کے لیے مالی سال 2020-21 کے دوران 4.7 کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ فاروق، بہت شکریہ۔ تو پی ٹی آئی حکومت 8,400 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کرے گی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ وزیر خزانہ شوکت ترین قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ مالی سال 2021-22 میں مجموعی سرمایہ کاری کا ہدف 16%، جی ڈی پی کا ہدف 4.8% رکھا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 4 بجے ہوگا۔ چھوٹی گاڑیوں والے صارفین کے لیے اچھی خبر ہے، بجٹ میں چھوٹی گاڑیاں سستی کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں 850 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز ہے۔ نئی موٹر سائیکل کے برانڈز پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز ہے۔ ٹریکٹرز کے نئے ماڈلز پر بھی ٹیکس کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ کے بنیادی خدوخال، آئندہ بجٹ کا حجم 8,487 ارب روپے مقرر۔ نان ٹیکس وصولیوں کا ہدف 2,080 ارب روپے مختص۔ ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو 7,909 ارب روپے ہوگا۔
NFC के तहत सूबों को 3,412 अरब दिए जाएंगे। बजट खसारे का तखमीना 3,990 अरब रुपए लगाया गया। इसी हवाले से मजीद खदोखाल क्या है बात करेंगे हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान हमारे साथ हैं। तो लईक बताइए। आपको बताया, आप बता रही थी कि कौमी बजट का जो टोटल वॉल्यूम है वो 8,487 अरब रुपए है, जिसमें से नॉन टैक्स वसूलियों का हदफ 2,080 अरब रुपए, जबकि मजबूरी तौर पर जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसका वॉल्यूम 7,909 अरब रुपए रखा गया है। FBR को 5,829 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का हदफ दिया जा रहा है और NSC के तहत सूबों को 3,412 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट खसारे का तखमीना 3,990 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि नॉन बैंकिंग सेक्टर से 1,241 अरब रुपए कर्ज लिए जाएंगे। गैर तरक्याती अखराजात का जो तखमीना लगाया गया है वो 7,523 अरब रुपए है और सूद की अदायगियों में 3,060 अरब रुपए रखे गए हैं। पेंशन के लिए 480 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि दिफाई बजट के लिए 1,370 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। गैर तरक्याती ग्रांट्स और तरक्याती ग्रांट के लिए 1,168 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं और सब्सिडी के लिए 682 अरब रुपए रखे गए हैं। दूसरी जानिब PSCP की मद में जो वफाक का PSCP है वो 900 अरब रुपए रखा गया है और मुकम्मल तौर पर जो तरक्याती प्रोग्राम है सूबों और वफाक का मिलाकर वो 2,000 अरब रुपए के लगभग होगा। सिविल हुकूमत के अखराजात के लिए 479 अरब और कोरोना की रोकथाम के लिए 100 अरब रुपए मजीद मुख्तस किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया लईक आपका। विफाकी वजीर इक्तसादी उमूर उमर अयूब कहते हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। मुखालफिन कह रहे थे कि ग्रोथ कहाँ हुई है, हमारी मईशत बेहतरी की जानिब गई है, ज़राए आमदन बढ़े हैं, पूरा फोकस मुलाजमतों और ज़राए आमदन बढ़ाने पर है। बजट है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है तो अशिया खुर्दोनोश की भी वहाँ पे भी इस्तेकाम आता है कि हमारे मुखालफिन और अपोजिशन पार्टियाँ कह रही थी कि जी ये कैसे हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत ग्रोथ आ रही है, इंडस्ट्री हमारी पिकअप कर रही है, सर्विसेज सेक्टर पिक कर गई हैं और आमदन भी लोगों की बढ़ रही है और इस वक्त हमारा इसी चीज़ पे जोर है कि कारोबार के मौके और आपकी मुलाजमतों के मौके वो बढ़ें। दावा करते थे कि बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, अब जो हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है सच कोई चीज़ नहीं है। जिस वक्त मेरे पास चार्ज था 2-2.5 साल हमने इसको इस्तेकामत में रखा है। तरबेला टनल 3 और 4 उन्होंने अपनी मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ है क्योंकि टनल 5 पे भी अभी काम शुरू हो रहा है, तो उन्होंने खुद उसको बंद किया था। पानी की जो बहाव है या पानी का लेवल जो ग्लेशियर्स पिघलने से आता है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कम हुआ था, उसकी वजह से इश्यूज आए थे 2-3 दिन, वो उन्होंने सॉल्व कर दिए और खासकर जो ट्रेन का हादसा हुआ था उसके साथ कोल के जो प्रोजेक्ट्स है वो भी मुतासर हुए थे। जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि बजट में सरकारी मुलाजमीन का मुकदमा लड़ा है, बजट आराम से मंजूर हो जाएगा। अपोजिशन इकट्ठी नहीं और अपना रोना रो रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठी नहीं है। क्या है, टेंट है, फिश PPP और नून का ही आपस में एक राब्ता नहीं है। सो मैं अपोजिशन को तो कुछ नहीं देख रहा। बजट पास होगा सूबे से भी और मरकज से भी। बार बार शिकवा कर दिए कि वफाक उनको बजट जो है तरक्याती बजट में कटौती कर दी है। कोई कटौती शटौती नहीं है, कोई अपोजिशन का मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। सरकारी मुलाजमों को रियायत मिलनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इकनॉमिक सर्वे में गुर्बत बेरोजगारी का जिक्र ही नहीं है। गुर्बत बेरोजगारी का जिक्र इसलिए नहीं कि इन दोनों में तारीखी इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत में तारीखी इजाफा हुआ, इसी वजह से इकनॉमिक सर्वे से गुर्बत का जिक्र गायब है। इकनॉमिक सर्वे पर रद्द-ए-अमल देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा बेरोजगारी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा है। अदादो शुमार को छुपाना और महंगाई के लिए बहाना बनाना मसले का हल नहीं। अवामी मसाइल की दुरुस्त निशानदही नहीं होगी तो मसले कैसे हल होंगे। अवाम PTI-MF बजट का बोझ उठाकर हुकूमती नाअहली की महंगी कीमत अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। नेशनल कौमी मुआशी काउंसिल, अब मुआशी काउंसिल, इक्तसादी काउंसिल, कौमी इक्तसादी काउंसिल। अब इक्तसादी काउंसिल का बहुत जो है गहरा ताल्लुक आपकी मईशत से है। उसमें ये मैंने एक पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये पढ़ा था, आपको अगर याद, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। इसका काम क्या है, जो इंश्योर इसने क्या कराना है, इंश्योर बैलेंस्ड डेवलपमेंट एंड रीजनल इक्विटी। मैं हरगिज नहीं चाहूंगी बलूचिस्तान में तरक्की ना हो,
क्योंकि इससे वफाक कमज़ोर होती है। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि पंजाब सफ़र करे क्योंकि इससे वफाक कमज़ोर होती है। हम ये नहीं चाहेंगे कि केपी के साथ ज़्यादती हो क्योंकि इससे भी वफाक कमज़ोर होती है। और हम ये भी हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि सिंध को उसका जायज़ शेयर ना मिले क्योंकि इससे भी वफाक कमज़ोर होती है। किसी एक इकाई के साथ ज़्यादती पूरी वफाक के साथ ज़्यादती है और इसकी हम मज़म्मत करते हैं। फिर असद उमर साहब ने ऐसी ऐसी बातें की जो गैर मेयारी बातें थी, गैर मुनासिब बातें थी, और उन्होंने ऐसी बात की कि जो हम उन पीटीआई के उन लोगों से तो उम्मीद रखते थे जो गुफ्तगू नहीं करना जानते, लेकिन एक शख्स जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा हो, एक शख्स जो आइन को जानने का दावेदार हो, वो फिर इस तरह के गैर मेयारी और नामुनासिब बयान दे तो हैरत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, पीटीआई की अभी किसी भी हरकत से हैरत नहीं हो रही है क्योंकि कल जो नेशनल असेंबली में हुआ वो काबिल मजम्मत है। 80 पॉइंट एजेंडा वहाँ रखा गया, वहाँ मुतअद्दिद बिल्स लाए गए और उस बिल्स को जिस तरीके से पास कराया गया वो पूरी प्रोसीडिंग गैर आइनी और गैर कानूनी थी। ऐसे बिल भी लाए गए जो अभी तक कमेटी में पड़े हैं, कमेटी ने फैसला नहीं दिया। मैरीटाइम का बिल डिफर हुआ था, जो पावर कमेटी का नेपरा का बिल था वो आईएमएफ की डिक्टेशन थी। और अगर आपको मैं इसमें भी बता दूं उन्होंने क्या किया, मेरे पास वो बिल भी है और पावर कमेटी की कल 2 बजे मीटिंग थी। पावर कमेटी की 2 बजे की मीटिंग में एजेंडा पे वो बिल था और क्योंकि जो वजीर मौसूफ है वो 2 कमेटीज में नहीं आए, 2 मीटिंग्स में, तो लिहाजा मेंबरान ने ये एतराज किया कि हम गवर्नमेंट का कोई बिल नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम लोड शेडिंग डिस्कस करेंगे। तो वो 2 बिल्स थे जो एजेंडा पे आए और वो पड़े रहे, उनका कोई फैसला नहीं हुआ। हम देखते हैं कि एजेंडा पर वो बिल मौजूद है, शायद इनको लगा कि वहां से ये जबरदस्ती से पास करा लेंगे, लेकिन पता इनको भी नहीं था कि गवर्नमेंट के अपने मेंबर्स लोड शेडिंग पर वहां पे एहतजाज करेंगे, तो वो इनकी प्लानिंग गलत हो गई। लेकिन एक्सपोज ये इसी तरह हुए कि इन्होंने वहां पहले ही बिल रखा हुआ था और प्लानिंग ये थी कि 2 बजे पावर की मीटिंग, 4 बजे सेशन, वहां से बिल नहीं हुआ। बावजूद इसके ये बिल आया भी, मतलब एजेंडा पे था तो, और हमाद अजहर साहब ने इस बिल को पास करवाया जबरदस्ती। अगेन ये गैर आईनी कदम था, आपकी जो ये रूल्स है इसके बिल्कुल खिलाफ था। मैंने इस पर शोर भी किया, मैंने कहा जी ये वो बिल है जो आज एजेंडा पे था। मुझे बहुत इधर उधर बताते रहे, मैं मानी नहीं क्योंकि मेरे पास तमाम शवाहिद थे अपनी बात जो मैं कर रही थी उसके हवाले से। तो ये तो पीटीआई से अब कोई बईद नहीं है। इन्होंने पार्लियामान को जो है वो उसकी शक्ल इतनी बिगाड़ दी है कि किसी भी जी शऊर और जमहूरियत पसंद इंसान को आज ये सब देखकर तकलीफ हो रही होगी। कोई खुश नहीं हो रहा होगा कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। मैं क्योंकि इस वक्त बजट का भी टाइम है, ये मैं ज़्यादतियों की बात कर रही थी, तो मेरे साथ ऑनरेबल मेंबर हैं यहाँ पर सिकंदर रापोटो साहब, और क्योंकि मैंने इनसे ख़ास इसलिए कहा था कि ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, सिंध के साथ होने वाली एक बहुत संगीन ज़्यादती जो है वो इनके हलके में हो रही है। वो जो रोड है जिसका जिक्र पहले भी आपके साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने किया, मुर्तज़ा वहाब साहब ने किया, जामशोरो सेवन जो रोड का एक टुकड़ा है जिसके लिए 2015 और 17 आगे बढ़े। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत ने गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में गैर मामूली उजलत की। जमहूरी इक़्तिदार कानूनी साजी के कवायद ज़वाबित को तोड़कर 20 बिलडोज किए गए। इसके पीछे हुकूमत की बदनीयती मुकम्मल वाज़ेह है। इस तरह कवायद की धज्जियां उड़ाकर पार्लियामान नहीं चलती। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में एहतजाज के लिए पोस्टर्स तैयार कर लिए हैं और एहतजाजी पोस्टर्स की निगरानी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और शीज़ा फातिमा करते रहे। वज़ीर ख़ज़ाना के बजट ऐवान में पेश करते ही एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कहते हैं मुस्लिम लीग नून ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबर आपको दें, बिलावल हाउस कराची के मीडिया सेल में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो से। अरबाब, ये कहिएगा आग कैसे लगी और इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? हाँ जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच गई हैं और तकरीबन 70% आग पर काबू पा लिया गया है और बाकी 30% आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड के अमले का ये कहना है कि बहुत जल्द इस काबू पा लिया जाएगा, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बिलावल हाउस मीडिया सेल में ये आग लगी है। अब 2 तरह के मौक़िफ़ आ रहे हैं। एक मौक़िफ़ ये बताया जा रहा है कि मीडिया सेल के करीब कचरा था जिसमें आग लगी और वो आग जो है मीडिया सेल को उसने अपने लपेट में ले लिया। दूसरा मौक़िफ़ ये आ रहा है कि नहीं, मीडिया सेल के अंदर आग लगी है जिसकी वजह से जो है वो पूरा मीडिया सेल के अंदर धुआं भर गया और तमाम मीडिया सेल में मौजूद जितने भी मौजूद अफराद थे उन सबको मीडिया सेल से बाहर निकाल दिया गया है और धुआं भरने की वजह से अब एक भी कोई शख्स मीडिया सेल के अंदर नहीं है। जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां का ये कहना है कि चंद मिनट के बाद आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। आग कोई खतरनाक या बड़ी तो नहीं थी, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल में लगी है और जिसकी वजह से मीडिया सेल में जितने भी लोग मौजूद थे वो सब मुतासिर है। उनको फौरी तौर पर जो है नुकसान पहुंचाने से पहले उन सबको मीडिया सेल से बाहर निकाल दिया गया। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि पूरा मीडिया सेल जो है धुआं हो गया है और वहां से धुएं के बादल जो है वो निकल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर मजीद भी आग भड़कने का इम्कान है, क्योंकि जब आग को मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा तब पता चलेगा कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या कचरे की वजह से आग लगी या कोई और बेसमेंट में इनकी कोई तारें हैं अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई कि आग कैसे लगी, लेकिन अरबाब चांडियो ये बता रहे हैं कि 70% आग पर काबू पा लिया गया है। ताहम अभी भी फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं जो कि इस आग को बुझाने के लिए एफर्ट्स कर रही हैं। फुटेज भी देखी जा सकती है एयरवाई न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर। ये है पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल, बिलावल हाउस का मीडिया सेल, जहाँ पर आग लगी है और इस वक्त वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं उनकी टीमें वहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रही हैं और यहाँ से लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। लेकिन मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, अभी तक ताहाल वजूहात मालूम नहीं हो सकी, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है। इस बारे में मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आप देख सकते हैं, 4 गाड़ियाँ यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ़ हैं और पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल बिलावल हाउस कराची के मीडिया सेल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो अरबाब ये बताइएगा, इससे कोई और साथ में बिल्डिंग मुतासिर तो नहीं हुई? ज़रा इसकी लोकेशन सही से हमें बताइएगा। जी, ये लोकेशन ये कि ये पुराना एक होटल था जो कि किसी जमाने में बिलावल हाउस में बनाया गया था इस साइड पर, फिर वो होटल बंद हो गया, उसको फिर यहाँ मीडिया सेल में तब्दील कर दिया गया। बिलावल हाउस और मीडिया सेल में काफी फर्क है। मैं आपको बताऊं कि ताकि सुनने और देखने वालों को पता चले कि बिलावल हाउस का गेट जो है उससे काफी दूर है। बिलावल भुट्टो जरदारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो बिलावल हाउस से अपनी गाड़ी में आते हैं और वापस फिर पैदल जाते हैं। इसका मतलब है कि ये बिलावल हाउस से बहुत दूर है, लेकिन क्योंकि ये मीडिया सेल है और है भी बिलावल हाउस का मीडिया सेल, इसके रास्ते से जो गुजर के फिर आप बिलावल हाउस में जा सकते हैं। ऐसा कहा जाए कि बिलावल हाउस के एंट्रेंस पे यानी बिलावल हाउस जाने के लिए आपको पहले इस बिल्डिंग से जो रोड साइड है इससे गुजर कर आपको बिलावल हाउस जाना पड़ता है। वैसे बिलावल हाउस के तो बहुत सारे गेट है, 4, 5, 6, 7 हो सकते हैं, लेकिन एक गेट पर जो है वो मीडिया सेल भी है। ठीक है, आपने कहा था कि 70% काबू पा लिया गया है, मजीद कोशिशें जारी हैं आग पर काबू पाने के लिए। अरबाब हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजारत सेहत के जारी 23 मनसूबे 2021-22 के PSDP में शामिल कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक 2020-21 में सेहत सहूलत प्रोग्राम पर 3200 मिलियन खर्च हुए। देही इलाकों में सेहत सहूलियात के प्रोग्राम पर 756 में से 162 मिलियन खर्च हुए। विफाक में 4 BHUs की तामीर के लिए मुख्तस 204 में से 56 मिलियन रुपए खर्च हुए। महफूज इंतकाल खून प्रोग्राम के लिए मुख्तस 235 में से 19 मिलियन खर्च हुए। पिम्स शोबा रेडियोलॉजी की अपग्रेडेशन के लिए मुख्तस 113 में से 100 मिलियन खर्च हुए। पिम्स MCH अपग्रेडेशन के लिए 854 में से 2 मिलियन रुपए खर्च हो सके।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हिज़्ब इख्तलाफ को चाहिए कि इस बार गैर रवायती अंदाज अपनाएं, शोर शराबा और हंगामा आराई के बजाय इजलास में संजीदा तरामीम लेकर आएं। अपोजिशन है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस दफ़ा थोड़ी गैर रवायती अपोजिशन करें, बजाय इसके कि हम बजट स्पीच फाड़ के एक दूसरे के ऊपर फेंकें, बजाय इसके कि हम शोर शराबा मचाएं। आप अपनी बजट तजावीज़ लाएं, अपनी संजीदा अपनी पॉलिसीज़ दें और उसमें जो एडजस्टमेंट होगी वो हम आपके साथ मिलकर करें। अपोजिशन संजीदा है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो टैक्स प्रपोजल्स पढ़े, उसके अंदर अपनी ऑल्टरनेटिव तजावीज़ दे। जब एक तगड़ी हो ना गवर्नमेंट, सारे साथ होते हैं। ये गलत फहमी है कि कोई चला जाएगा, सारे साथ हैं, छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हो गया है। पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली के इजलास की हिकमत अमली तय कर ली। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास की हिकमत अमली का फैसला अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। फैसला किया गया कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल करेंगे। मुराद सईद कहते हैं अपोजिशन परेशान है कि कैसे इमरान खान ने मईशत को ICU से निकालकर बहाली की जानिब गामजन कर दिया। NRO की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। बजट पेश करेंगे तो अपोजिशन चोर मचाएगी, जब हम तकरीर करेंगे तो ये बाइकआउट कर देंगे। लोग कहते हैं कि अपोजिशन वाले हैरान नहीं है, परेशान है वो, उनको दुख है। दुख किस चीज़ का कि इन्होंने जिस मईशत को ICU तक पहुंचाने के लिए बड़ी कोशिश की थी, इमरान खान उसको इस्तेहकाम की तरफ कैसे लेके आया। एक दूसरे के साथ निकले थे NRO के लिए, उसमें भी नाकामी हो गई। जब फेटअप था तो उस वक्त में आपने देखा था कि NRO मांग रही थी, उसमें भी नाकामी हो गई। सड़कों पे अवाम ने इनको मुस्तरद किया। जो इनकी क़ियादत है वो इश्तिहारी और मफरूर इस वक्त वहाँ पे लंदन बैठे हुए हैं। अवाम का और इनका इतना वास्ता है, जिस तरह क्या किलो का अंडों से और दर्जन का आलू से है, इतना ही बिलावल का गुर्बत से और गरीब से ताल्लुक है। उन्होंने पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था, इन्होंने पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में धकेला था। इनके ज़माने में इंडस्ट्री जो है हमारी तबाह हो गई थी, एग्रीकल्चर हमारा नेगेटिव ग्रोथ में चला गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तमाम एशारिये जो है, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं तो ये आज का पाकिस्तान है। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, जो दुनिया कोरोना की वजह से तमाम मईशत तबाह कर गई, इसके बावजूद आपने 4% का ग्रोथ दिया। तो मेरे ख्याल से दलील तो नहीं है, शोर मचाएंगे, अब आ जाएंगे, आप उनके नारे सुनेंगे, अपनी तकरीरें झाड़ देंगे, फिर जब हम बात करेंगे तो ये ऐवान से वॉकआउट कर जाएंगे। इस न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।